the battle for Bihar intensifying with just 18 days to go for the phase 1 of Bihar elections. The battleground is set. Parties are gearing up. There's no scope of lagging behind in this high-octane battle. The Congress party, though, seems to be battling. It's infighting still, though. According to sources, it's a faction of Congress which is deeply displeased with the caste-based ticket distribution. Facing scrutiny is the Bihar Congress's President Rajesh Ram, a faction of the Congress which has now called a meeting in Patna to discuss ticket controversy, from former MLAs to district presidents to former candidates, and several Congress leaders will be attending this meeting. We're also learning that any other faction in the party is displeased with the High Command's decision to distribute tickets for the assembly as well. Meanwhile, amidst the increasing dissent within the party, Bihar Congress President Rajesh Ram, in an angry post on X, has said, and I quote, "Dalits will not be suppressed and they will not bow down. Now there will be a revolution." So viewers, there just 2 days ago, remember, there was a heated exchange of blows, literally kicks, which happened in front of the Congress president at Patna airport. With elections around the corner, the Congress party is losing ground because of deep resentment. Okay, Saket joining us live on the broadcast. Saket, can you give us more details as to, the type of infighting which is brewing in the Congress party? ऐसा लग रहा है कि बिहार इलेक्शंस क्लोज आ रहे हैं, बट कांग्रेस को इनफाइटिंग बहुत परेशान कर रही है. देखिए, हमेशा ऐसा होता है कि कांग्रेस जब भी चुनाव आता है तो अंदर जो लड़ाई है कांग्रेस के, वो फिर से शुरू हो जाती है. और एक बार फिर से इस बार चुनाव में जो दिख रहा है कि कांग्रेस के अंदर जैसे ही सीटों का बंटवारा हुआ और टिकट फाइनल करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद पार्टी के अंदर नाराजगी बहुत तेज हो गई. जो सीटिंग विधायक है, कुछ ऐसे भी विधायक है जिनका टिकट काटा गया, जो सिटिंग है वहां पर, अब वो लोग अपने कांग्रेस के खिलाफ जो है वो मुहिम छेड़ दिया है उन लोगों ने. आज ही हमने एक विधायक है खगड़िया से, छत्रपति यादव, उनका टिकट काटा गया है, जो सिटिंग वहां से एमएलए है. उन्होंने खासतौर से आरोप लगाया है जो यहाँ के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन पर और राजेश राम पर, कि उन्होंने सिंडिकेट से मिलकर टिकट को बेचा है. ये आरोप पार्टी के विधायक के तरफ से लगाया जा रहा है. वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर इन चीजों पर कड़ाई नहीं करेंगे तो फिर बिहार में कांग्रेस की स्थिति जो है और खराब होती चली जाएगी, और जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा. ये कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठ रही है. और आप देखिए स्थिति किस तरह से है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के दो दलों ने एक कैंडिडेट उतार दिया है एक सीट पर. ऐसी सीटें लगभग 11 है बिहार में. तो आप समझिए कि किस तरह से अंदर खाने में इस तरह की सियासत और राजनीति चल रही है. एक तरफ बीजेपी एनडीए प्रचार में लगी हुई है, तमाम बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी के वो बिहार में प्रचार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन और कांग्रेस के अंदर उनके ही पार्टी के नेता की तरफ से इस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, और जो अंदर खाने जो लड़ाई है कांग्रेस की वो शुरू हो गई है. Well, absolutely. So infighting within the Congress escalating. Saket, do stay with us. Let's also tell our viewers exactly what is happening when it comes to the Congress party, because again, it's a high-octane battle. Looks like the Congress is battling infighting, viewers. As we were telling you, what is it? Sources are telling us that a faction of Congress is unhappy with what they call caste-based ticket distribution, and the BJP has latched on to this information, is using it to attack the Congress ahead of the Bihar battle. Listen into what the BJP is saying, viewers. ये महागठबंधन है, महाठग बंधन है, और इतिहास गवाह है कि इस देश के अंदर संविधान निर्माता जिन्होंने वंचितों, पिछड़ों को उठाने का काम किया, उनके साथ किसने अन्याय किया था. किसने, नेहरू जी ने उनके सामने जानबूझकर उनको चुनाव हराने का षड्यंत्र रचा था. किसने देश के अंदर काका कालेकर की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया. किसने देश के अंदर मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया. मैं कांग्रेस के मित्रों को कहता हूं, संविधान की लोकसभा की कार्रवाई निकाल कर देखें. उन्हें समझ आएगा कि किस तरह संकीर्ण मानसिकता से कांग्रेस 7 दशकों से, 4 पीढ़ियों से दलितों और वंचितों का अपमान करती आ रही है. Meanwhile, viewers, Chirag Paswan met Union Home Minister Amit Shah in Patna to discuss the NDA preparations and also strategy for the upcoming 243-seat Bihar Assembly elections. आदरणीय अमित शाह जी,
बिहार के दौरे पर हैं। आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर आने वाले दिनों में कैसे हम लोग कैंपेन को और ज्यादा साथ मिलकर मजबूत कर सकें, ताकि हर वो सीट हम लोग जीत सकें, जिससे एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो। और ये होना भी है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल चल रहा है। एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी के सामने उन्होंने नॉमिनेशन किया है। All right, Saket continues to be live with us. Saket, we just spoke about the internal strife in the Mahagठबंधन. Meanwhile, NDA, let's talk about the NDA camp, because Chirag Paswan, we believe, met Union Minister, Home Minister Amit Shah. They met in Patna. They discussed the NDA's preparation. किस तरीके की strategy रहेगी? क्या discuss हुआ इस meeting में? Can you give us more details? देखिए, अमित शाह 3 दिनों से पटना में, आज तीसरा दिन उनका है, बिहार दौरे पर वो आए हुए हैं। और यहाँ पर पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की। वहाँ पर रणनीति जो होगी, क्योंकि अब सीट बट गया, कैंडिडेट फाइनल हो गए, तो अब मैदान में उतरना है तमाम नेताओं को। तो कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए एनडीए के घटक दलों के साथ, इसे लेकर चर्चा हुई। और वही चर्चा आज चिराग पासवान के साथ भी हुई है, क्योंकि ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं अपने अपने घटक दलों के, इन लोगों के साथ बैठकर एक कह सकते हैं सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। अमित शाह खुद इन लोगों से बात कर रहे हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए, कैसे, चूंकि अभी से तमाम विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं का दौरा होगा, वहां पर रैलियां होंगी। तो एक जगह अगर हमें जो जानकारी मिली है कि हर सीट पर गठबंधन के तमाम दलों के नेता मौजूद हों, वहां प्रचार करें, ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं के साथ भी बैठक की। उन्होंने बीजेपी के नेताओं को कहा, जो केंद्रीय मंत्री हैं या फिर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को कहा है कि वो हर विधानसभा क्षेत्र में जाए, वहां पर लोगों से बात करें, वहां नुक्कड़ सभाएं हो, तमाम तरह की तैयारी बीजेपी की जो है वो है। और उसी सिलसिले में बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। एंड ऑब्वियसली इन द बैकड्रॉप ऑफ दैट, दिस मीटिंग, द क्रूशियल मीटिंग बिटवीन चिराग पासवान and the Home Minister Amit Shah was held. बने रहिए हमारे साथ साकेत, because we've also spoken to Maithili Thakur. Remember, she is contesting from Ali Nagar. She says that the Sangathan has given her this opportunity, and she also expressed her gratitude towards the Prime Minister. Listen into what she had to say. इस तरीके से संगठन ने मुझे ये मौका दिया है, प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझे ये मौका दिया है, और उनको कभी भी निराशा न पहुंचे, इसके लिए हम भी दिन रात एक किए हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो हमेशा 10 साल आगे का सोचते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं, सभी युवा उनसे इंस्पायर हैं कि कैसे वो इतनी बड़ी बड़ी बातें पहले ही सोच के बैठे हुए होते हैं। मुझे भी आभास नहीं था कि उस समय वो मेरे लिए कुछ ऐसा मन में प्रयोजन बना रहे हैं। जब नामांकन आप करने गई तो छठी मैया की जो गीत है उससे आपने अपना नामांकन की शुरुआत की। कहीं ना कहीं छठ महापर्व जो है वो बिहार के लिए सबसे बड़ी चीज है, और उसको आपने दर्शाया है। और सभी महिलाओं ने मुझे पाक दोपटा पहना करके नामांकन के लिए भेजा कि अब विजयी भव। एक गाना, एक छठी मैया का गीत यहाँ भी हो जाए तो हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत सुंदर। केरवाजे भरेला भवद से ओह पर सुगामीड़ राय, ओह पर सुगामीड़ राय, मार बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरुझाए, सुगा गिरे मुरुझाए। All right. With that, we'll slip into a short commercial break. News and updates on the other side. Please don't go anywhere. Pakistan has shown the